Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खितड़ी। और हमने स्टार्ट किया था पेपर फर्स्ट CH501 विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हमने किया है, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांजिशंस। वेरियस ट्रांजिशन कौन कौन से हैं? तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये डिवाइड किए गए हैं होमो और ल्यूमो में। होमो विच इज़ हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन, एंड ल्यूमो विच इज़ लोवेस्ट unoccupied molecular orbital. So atomic orbital have been divided into two. In occupied orbital there are sigma and pi molecular orbital, and in unoccupied level there are sigma star and pi star, and one is atomic orbital sigma n. This electron will not participating in bonding. तो जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उनको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ऑक्युपाइड जो लेवल्स हैं वो है हमारे सिग्मा, पाई एंड एन, और जो अनऑक्युपाइड हैं वो है हमारे पास सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो पॉसिबल हैं वो पॉसिबल है एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, pi to pi star, sigma to pi star, and sigma to sigma star. So there are 5 transition, electronic transition which are possible. These transitions are related to these structures. Sigma to sigma transition will happen in alkanes where sigma bond is present. Sigma to pi star transition is possible in carbonyl compounds where sigma bond is there and also pi bond is there. Pi to pi star transition is possible in alkenes, carbonyls and alkynes. Their pi bond are present. To pi star transition will work here. N to sigma star. N means the electrons which are not participating in bonding. Okay, so these electrons are mostly present on nitrogen, oxygen, sulfur, halogen. So these type of transition will be present in these type of compounds. N to pi star, it means pi bond will be there. With pi bond there also some electrons on atom which will not participate in bonding. So these 5 transitions are here. We will study these all transition in detail. So type of electronic transition, they are divided into 3 parts. First is transition involving electrons. In this type of transition we need electrons. These transition electrons may be pi electrons, sigma electron and n electron. Second, transition involving charge transfer. So by charge transfer transition will be there. Third is the transition involving electron of d and f orbital. So in third transition electron will participate, but these electron will be either d orbital electron or f electron orbital. They are not like pi, sigma or n electrons. So in detail, first one which is transition involving electron pi, sigma and n, it is generally present in organic molecules, organic saturated molecules. Okay, because these involving pi, sigma and n electrons. These are also different types. If transition is sigma to sigma,
then they need 150 nanometer UV lambda max. If transition is N to sigma star, then they need 250 nm wavelength. Deep UV, double bond unsaturated system, also these type of transition in there, less energy of pi star, so pi to pi star, and N to pi star transition, lambda max will be in between 200 to 700 nanometer. Second, transition involving charge transfer. For that type of transition, it is present in metal ligand complexes because charge is transferring. So electron move between ligand and metal. One, either metal or ligand, behave as donor, and other one will be behave as an acceptor. One atom will give electron and another will accept. So donating or accepting type of atoms are there. Third one is transition involving electrons of D and F. Here transition will be there, but there is no sigma electrons, no pi electrons, and no n electrons. So there additional transitions between d orbital split by presence of ligand field, usually invisible. We all know we are saying DD transition. Color of transition elements is because of DD transition. When only metal is there, then electrons will be present in cells and all cells will be equal energy. If any ligand come to near metal, then electrons orbitals will split. Some orbitals will be go in higher energy levels and some will have lower energy levels. So their orbital energy will be split, and electrons, this is the because of ligand field. Ligand can be weak or ligand can be strong. So del value, which is splitting energy, is depend on the ligand field. It is generally in visible range. We can also see here structure, bonding sigma state, 2 electrons are there. Bonding pi state, 2 electrons are there. Non-bonding, there 2 electrons are there. So these are the HOMO energy levels, highest occupied molecular orbital. So highest occupied molecular orbital, there 6 electrons will be there. After that, these are LUMO, anti-bonding pi state and anti-bonding sigma state, and these are the transitions. Next, transition involving pi, sigma and n. So there will be sigma to sigma star transition. Transition involving electrons. इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा के भी हो सकते हैं, पाई के भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं. तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन अगर होता है, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है इस ट्रांजिशन की वो सबसे ज़्यादा होगी. क्यों होगी सबसे ज़्यादा? अगर हम यहाँ देखें तो सिग्मा स्टार सबसे अपर लेवल है और सिग्मा सबसे लोअर है. सिग्मा बॉन्डिंग सबसे लोअर है और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा सबसे अपर है. तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा डजंट अपीयर इन स्पेसिफिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा. तो हम एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की जो रेंज बोलते हैं 200 टू 700 नैनोमीटर, इसमें इसका लैम्डा मैक्स नहीं आता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. एग्जाम्पल हमने लिया CH4. CH bonding, only sigma bonding is there, so sigma to sigma transition are there.
मैक्सिमम ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 125 nm। जैसे कि हमने कहा था एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी लैम्डा मैक्स बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी? वी नो दैट E equals to h nu and nu equals to c by lambda. If energy is more, then lambda will be lower. Okay. Next one is the N2 sigma transition. Where is N? This is non-bonding and this is anti-bonding. So here transition will be, energy will be lower than sigma to sigma star transition. ये किस में होगा? ये ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होगा जिसमें एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रांजिशन होगा वो होगा N2 सिग्मा स्टार। The energy necessary for those transition is less than the energy needed for sigma to sigma star transition, जैसे अभी हमने बताया। तो अब यहाँ पर ट्रांजिशन का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो कम हो गया। एनर्जी गैप कम होने से क्या होगा? इसका जो लैम्डा मैक्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे इसी रेंज में आएगा जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की है। तो ट्रांजिशन में बी इनिशिएटेड बाय द रेडिएशन इन द वेवलेंथ ऑफ 150 to 250 nanometer. The number of organic functional group which have the maximum of absorption in UV region is small. Next one, N to pi star transition and pi to pi star transition. तो N to pi star और pi to pi star, इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों ही कंडीशन में हमारे पास या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, उनसे हम पाई स्टार में ट्रांजिशन करवा सकते हैं। तो मोस्ट एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द फंडामेंटल लेवल ऑफ एन और पाई ऑन द एक्साइटेड लेवल पाई स्टार। पाई स्टार इज एक्साइटेड लेवल. Absorption bands for these transition falls in 200 to 700 nanometer region. It is the best region of UV visible, and these transition required in molecule for an unsaturated group which has pi electron. Saturated नहीं होगा, saturated के condition में एक single bond होगा, तो pi sigma transitions are there possible, but unsaturated means double bond है. double bond के साथ साथ उसके पास क्या होने चाहिए? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे. तो अनसेचुरेटेड के केस में पाई टू पाई स्टार होगा, और अनसेचुरेटेड के साथ में अगर कोई ऐसा उसके पास वो एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट है, तो N to pi star transitions are possible. So first one is the N to pi star transition have low molar absorbability and value is 10 से लेकर 100 तक लीटर पर मोल सेंटीमीटर. pi to pi star transition have higher molar absorptivity value 1 से लेकर 10 तक लीटर per mole centimeter. The solvent could influence the position of absorbance band. जो एब्जॉर्बेंस बैंड आएगा वो सॉल्वेंट की वजह से थोड़ा सा शिफ्टिंग उसमें आ सकती है. विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी N to pi star transition are shifted to lower wavelength. अगर लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट. दिस शिफ्ट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, सॉल्वेंट का उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ इंट्रैक्शन हो सकता है. ऑर्बिटल एनर्जी डिक्रीजेस n विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी. ये तो N to pi स्टार की कंडीशन में लोअर वेवलेंथ हो सकती है, उसका रीज़न है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बट अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तब क्या होगा? ट्रांजिशंस आर ऑफन शिफ्टेड टू
हायर वेवलेंथ। हायर वेवलेंथ मतलब रेड शिफ्ट। दिस इज caused by attractive polarization force between the solvent and absorbent। तो वहाँ पर attractive polarization force हो सकता है solvent और absorbent के बीच में, which determine the decrease of ground and excited state. This decrease is greater for excited state than for fundamental state. So the difference in energy between the two levels decreases. So result क्या हुआ? Result ये हुआ कि जो उसकी शिफ्टिंग है एब्जॉर्प्शन बैंड की वो हायर वेव नंबर की तरफ चली गई, जिसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। दिस इफेक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस, जो पाई टू पाई स्टार वाला ये जो फैक्ट है, ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को भी इफेक्ट कर सकता है, बट इट कवर बाय द ब्लू शिफ्ट ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इनका सॉल्वेंट का इफेक्ट दोनों ही केस में होता है। एन टू पाई स्टार के केस में ब्लू शिफ्ट होगा और पाई टू पाई स्टार के केस में रेड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, ये हमने एग्जांपल लिया, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज दैट हैविंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अगर इसका हम एब्जॉर्प्शन बैंड देखेंगे तो हमें दो तरह के बैंड्स मिलेंगे। एक बैंड होगा N2 पाई स्टार की वजह से, सेकंड होगा पाई टू पाई स्टार की वजह से। तो इन बैंड की जो पोजीशंस हैं वो सॉल्वेंट की वजह से इफेक्ट हो सकती है। तो ये बॉन्डिंग कैसे हुई, ट्रांजिशंस, ये हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का एक ट्रांजिशन हो सकता है N2 पाई। हमने कहा था कि होमो और ल्यूमो दो तरह के लेवल्स हैं। होमो में मैक्सिमम हमारे पास ऑक्यूपाइड 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऐसे ही ल्यूमो में हमारे पास अनऑक्यूपाइड होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब जब हम बात कर रहे हैं होमो की, तो हम ये मानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे, 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ऑक्सीजन पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल शिफ्ट इनटू पाई स्टार। तो पाई स्टार पोजीशन तो यहाँ होगी, एन पोजीशन यहाँ होगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपर पोजीशन में, जो हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे एन में, जो कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहाँ पाई स्टार में। तो अब यहाँ पर ये रेड शिफ्ट जो किया है, पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन है और एन में हमारे पास 4 की जगह इलेक्ट्रॉन हो गए 3। सेकेंड हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर, सो 1 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स ये जंप किया अपर पाई स्टार में। तो यहाँ इजीली हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन फॉर्मल्डिहाइड। इसको इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमने ग्राउंड स्टेट लिया जो कि होमो है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमने ल्यूमो लिया जो कि हमारा खाली है, एक्साइटेड स्टेट्स है। पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस सिग्मा में। एन टू सिग्मा स्टार में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर। पाई टू पाई स्टार में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा पाई स्टार में। एन टू पाई स्टार में ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जाएगा पाई स्टार में। तो यहाँ पर होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दीज आर द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि पॉसिबल हैं। ओके, ये 5 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल्स हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। सबसे पहले सिग्मा होगा, फिर पाई, फिर एन, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। तो इस तरह से ये हमने वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यहाँ पर देखे हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को यहाँ हम कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके शिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट क्या होती हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।